मैम ये पहला स्लाइड था क्या? अच्छा। ठीक है। Okay. So good evening to all of you. In my previous class, I have already discussed what is management. Then what are the features or what are the means criteria of managements. I have give you overall analysis of that. Now there is another important part of this management, that management can also be considered and can be compared with science and art. Okay, so that is why I kept the topic mastering the art and science of management. Okay, uh, mastering the art of science and management means you need to be, if you want to be a very good in any organization, you need to be a skill oriented. Okay, the first criteria is to be, you need to be a skill oriented. Okay, and apart from that, if you want to be developed in the management field, then you know the how the science or the means you can in-depth analysis of mastering the art of management. You must know the art of technique of doing managements or having the management techniques. Okay, so the here let us read it. Um, the presentation will delve into core concept and functions and evaluation of management, providing a comprehensive overview of this essential field. We also explore the various roles and responsibilities of a manager, their social responsibilities, and critical importance of human resources in an organization. Okay, so this is simply where we can develop our art of management, or where we can show the skill of our management. Okay, suppose you are, suppose, say for example, if anyone is in the organization. Suppose anyone is working in the organization in a very good post, say for example in an executive post. If somebody is working, then he or she should know what are the areas that I need to develop and what are the areas I need to work on. Okay, how I need to tackle the sales, how I need to tackle my clients, how I need to tackle the orders, supply, what is my social responsibilities that I should acquire of. So these are, and what will be the impact on the societies, what will be the impact on the organization. This all comes under the management skill. Okay, this all comes under management skill. And say for example, if you visit to, and this skill you may see, if you are going to visit, suppose say for example any private bank. If you visit to any private bank, ICICI, HDFC, Axis Bank, I will recommend you that if you want to see their management skill, you just go to ICICI or Axis Bank. I am means supporting these two banks, ICICI and Axis Bank. Look at their management skill, how they are coping up with the customers every day, how they are dealing with the clients every day with a very polite, proper way of communication, proper way of grooming, and how they are managing each and everything. And even they are also means uh, you can say they are also meeting the deadlines of their sales. Okay, meeting the deadlines of their target with so much of work pressures. How they cope up with the customers, that's a fine thing. If you want to go and if you want to learn the art of mastering, then you need to visit this two banks. I will recommend you, then you can understand that what the management is all about. See,
I can make you clear. I can give you the notes. I can make you understand about the management. But the basic part is that it should be done in practical. Then only you can understand that how the management works. And for that, you need. May I request you to visit these two banks in any day except Sunday, or except the second Saturday or fourth Saturday, they have, maybe they have a holiday. So you may visit on the others day sometime and look how they make a relationship with the customers, how they are offering their jobs, how they are offering their roles and responsibilities to the customer. This is the thing you need to learn from the management. And the first important part of the management is having a good grooming sense. मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो गूढ़ रहस्य है, मैं आपको बताता हूं, वो है ग्रूमिंग सेंस। जिसका ग्रूमिंग सेंस अच्छा है, ग्रूमिंग का मतलब क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका। हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स, और इन फ्रंट ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव, हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, दैट इज द पार्ट ऑफ अ ग्रूमिंग्स। योर ड्रेसिंग सेंस, हाउ यू स्मेल, उसके बाद आ जाता है द वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप अपने आप को कितना काम एंड क्वाइट रख पाते हो, दैट इज अनदर चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, बहुत सा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते हैं इफ यू आर वर्किंग इन एन वेरी हाई प्रोफाइल सेक्टर और इन हाई ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बहुत काम एंड क्वाइट पेशेंस रखना, कुछ कुछ चीजों को रेजिलिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट यही सिखाता है कि आप कैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपने आप को किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये मैनेजमेंट सिखाता है। Apart from that, your social norms, your social responsibilities, this is the thing you can do by practicing the art of communication, sorry, the art of learning the management skill. Now say for example, I am going to give one or two example that will might going to clear your doubts. Say for example, अब मन में ये सवाल है सर ये कैसे हैंडल करना है। सपोज से फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान में या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हो, कोई ऐसा एक कस्टमर आता है जहां उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, अब जब आपके सामने वो कुछ प्रॉब्लम्स लाता है, तो सबसे मैनेजमेंट का सबसे पहला गोल्डन इंपॉर्टेंट रूल है, आप पहले सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है कि आप पहले सुनिए। बी पेशेंस एंड लिसन टू योर कस्टमर। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला सबक है, आप लोगों को सिखाया जाता है कि सबसे पहले सुनिए। आप जब भी कोई कस्टमर आपके पास आ रहे हो, आप सबसे पहले उनको ध्यान पूर्वक सुनिए। बीच में एक भी वर्ड्स आप कुछ भी मत बोलिए, सिर्फ उनको बोलने दीजिए। अब जब उनका बात खत्म हो जाए, उनके उनके तरफ से कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, तब आप बोलिए। ये पहला गोल्डन रूल है मैनेजमेंट का। दूसरा गोल्डन रूल इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कम्युनिकेशन करो कस्टमर्स के साथ, आप वेरी पोलाइट एंड वेरी calm and quiet way reply his or her answers. Maybe the customer will going to throw you or use some languages which may not be habituated to listen, but you need to remain very calm and quiet, okay, and listen to him or her very patiently. After third important thing, try to give your opinion. I am not talking about the solution, I am talking about your opinion. उसके बाद आप अपना ओपिनियन दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैंक ले लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा मैनेजमेंट ओरिएंटेड वर्क्स जो होता है बैंक में होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक, दैट इज ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर बैंक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सबसे अच्छा आपको मैनेजमेंट स्किल अगर कहीं सीखना है,
in this is the place. Especially these two bank I will going to recommend you, ICICI Bank and Axis Bank. Okay, these two bank are highly recommended to learn the management skill. आप जब भी उस बैंक में जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम्स, सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है या सेविंग्स का एफडी रिटर्न आप चाहते हो या फिक्स डिपॉजिट करना है या लोन स्कीम करना है, सबसे पहले देखिए वो आपसे कैसे आपसे बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप एंटर करेंगे आपको वो एनवायरमेंट जो है आपको काम एंड क्वाइट कर देगा, आपका जितना गुस्सा है शांत हो जाएगा. उसके बाद जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, दे विल गोइंग टू अलाउ यू, वेलकम सर, प्लीज हैव योर सीट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. If you want to have some personal loan, if you want to recommend some personal loan, or if you want to have some personal loan, there are different counters are there, different persons are sitting over there, go and talk to them. Okay, what are the returns, what are the ratios, and they will never ever going to force you to take the personal loan, never ever. सर ये इसका बेनिफिट्स है, ये इसका रेट ऑफ रेशियो है, आप इसको इतने सालों में अगर करेंगे तो इसका रेट ऑफ रेशियो इतना लगेगा, अब इसका आप डबल करना चाहते हो, इसका रेट ऑफ रेशियो जो रेपो रेट है ये लगेगा. दैट्स ऑल सिंपल. उसके बाद कोई सवाल नहीं. ऐसा कुछ भी मैनिपुलेशंस नहीं करना है, ऐसा ऐसा मैनिपुलेशंस कभी नहीं करना है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए. मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है. तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर ग्रूमिंग सेंस, your communication skill, your way of talking, your way of representing yourself in front of customer. These four are the important skill you should learn to how to manage. और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो या काम कर रहे हो, उम्मीद आपसे यही लगाया जाता है. तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब अप्रेजल होता है ना, कंपनीज की तरफ से अप्रेजल दिया जाता है, कंपनी उसी क्लाइंट को, सॉरी उसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव को या एग्जीक्यूटिव को अप्रेजल देने में खुशी महसूस करता है जिसका कंप्लेन रेशियो रेट्स सबसे कम हो ऑफिस में. आप जानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर एनी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक एंड रिव्यूज. आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं शेयर कर रहा हूं, एक रिव्यूज उनका होता है अपनी तरफ से, और कैमराज आर देयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट, दे आर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर इज बीइंग ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली. आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज योर रॉन्ग कंसेप्शन. आपको हर वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा है. और अप्रेजल उसी को दिया जाता है जिसका थ्रू आउट द ईयर, जिसका कंप्लेन जो है, रेट ऑफ रेशियो ऑफ कंप्लेन जो है सबसे लो रहता है. सबसे पहला अप्रेजल उनको दिया जाता है. उसके बाद सेल्स जिसका अच्छा है उसको दिया जाता है. फोर्थ जिसका मतलब इस तरह से उन लोगों का एक अलग अलग वर्जन्स या अलग अलग डिफरेंट एरिया, मतलब डिविजन्स होता है. उनके पैरामीटर्स में आप अगर मैच करते हो, देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट द अप्रेजल. ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो दिस इज द आर्ट. If you learn this art, this is the art. If you learn this art and if you learn the skill of this, then you can develop in any organizations. Develop in any organizations. कोई टॉक्सिक जो कोई भी टॉक्सिक या मतलब वर्कर को या एम्प्लॉयज को कभी कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करता है. नेवर एवर. मैनेजमेंट आपको 10 तो गाली देगा, दैट इज बेयरेबल, बट आप अगर उनसे टॉक्सिक बिहेवियर करोगे तो एट द टाइम ऑफ दिस अप्रेजल पार्ट आपका वो नेगेटिविटी हो जाएगा, और नेगेटिव जब हो जाएगा आप अप्रेजल कट जाता है. याद रखिएगा, दिस इज द थिंग. And what about the social responsibilities? The social responsibilities means how you are behaving with your customers, how you are creating your attitudes in the neighbors, in the society. Okay, so this is the another important part. Hope you understood. Any doubt on this? Mastering the art of science and management? कोई doubt है? ठीक है, मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ लेट अस, मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन बता दिया थोड़ा सा, क्या है इसका जिस्ट क्या है. अब थोड़ा सा देखते हैं
नोट वाइज क्या दिया हुआ है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ साइंस ड्यू टू इट्स सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग and decision making. I have already told you in my previous class when I was teaching you about, I am giving my lecture on the management, that what is management? It is about a development of systematic problem solving and decision making. जितना देखिएगा कस्टमर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई भी एरियाज में या सेक्टर में आप जहां भी काम कर रहे हो, आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस स्किल वो आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत मतलब आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा. इन एजुकेशन सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सेक्टर because I am the part of this sector. It's a big organization sector, education sector. I'm talking about this. The students during our parents meeting, एक पेरेंट्स मीटिंग रखा जाता है एवरी यूनिवर्सिटी और एवरी कॉलेज इज कंडक्टिंग. अभी ये कंपलसरी हो गया अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स. तो जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता है ऑर्गेनाइजेशंस में या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, द पेरेंट्स यूज्ड टू कम एंड द स्टूडेंट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, द स्टूडेंट्स make the communications or make them means the communications with with those teachers who are having a very good analytical decisions making and problem solving skill teachers. ठीक है, पेरेंट्स उन्हीं से आके मिलते हैं, स्टूडेंट्स उन्हीं के पास आके बोलते हैं सर ये सर हमारे हैं, ये हमारे क्लास टीचर्स है, ये हमारे रेस्पेक्टिव एचओडी है, ये साइंस पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते, कम्युनिकेशन पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, जो भी है सर आप इनसे मिलिए. पेरेंट्स आके स्टूडेंट्स के जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो टीचर से शेयर करते हैं. नॉट विथ एवरी टीचर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बट द टीचर्स हु हैज द स्किल टू गिव द डिसीजंस, प्रॉपर डिसीजंस, who knows the art of problem solving, the parents come to them and talk with them. और ये जो सिनेरियो है ना, ये बैठ के मैनेजमेंट ऑब्जर्व करते हैं इस दिन कि कितना डिमांड है कॉलेजेस में, कौन कौन का टीचर्स का सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन है. पढ़ाते सब अच्छे हैं, they are all very good teachers, okay, but उसके अलावा स्किल क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अदर स्किल यू आर हैविंग. और अदर स्किल में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजंस मेकिंग, प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजंस. से फॉर एग्जांपल बहुत सारे टीचर्स पेरेंट्स आते हैं जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जानते हैं और अपनी तरफ से एक कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं. उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, नहीं हम अपने आपसे प्रिंसिपल से मिलना है, हमें आपसे मैनेजमेंट से मिलना है. अरे भाई मैनेजमेंट थोड़ी ऐसा मिलता है कोई भी पेरेंट्स से अचानक से. तो अब उस सिचुएशंस में जो पेरेंट्स थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है, नहीं मुझे पेरेंट्स आपके मैनेजमेंट से मिलना है, मुझे आपके प्रिंसिपल सर से मिलना है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बस फैसिलिटीज ठीक नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इट. उस टॉक्सिक पेरेंट को आप उसी मोमेंट में कैसे हैंडल करते हो और कैसे सब कुछ निपटा के शांत करके जाते हो, दिस इज द मेन थिंग. और मैनेजमेंट ये सब ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो कौन सा पेरेंट्स आ रहे हैं, किसका ज्यादा डिमांडिंग है कॉलेजेस में, कौन सा प्रोफेसर का सबसे ज्यादा डिमांडिंग है. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, अपना नहीं, हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एवरी फैकल्टीज आर मेनी मोर एसोसिएट प्रोफेसर्स आर देयर, उनमें जो ये होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. वो प्रोफेसर का सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है और वो प्रोफेसर को सबसे ज्यादा आगे रखा जाता है जिनमें ये स्किल्स दो चीज होता है, एक डिसीजन मेकिंग और एक क्विक एंड प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. कुछ ना कुछ पेरेंट्स को समझा के उसको अच्छी तरह से कुछ अपने तरफ से कुछ ना कुछ बोल के शांत करके वापस भेजना. तो मैनेजमेंट जो साइंस है, ये साइंस, ये सबसे बड़ा साइंस क्या है कि डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए. छोटी छोटी बात में आप प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते हो, आपको तुरंत वहां पर जाके आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है. दिस इज द मेन पार्ट. और मैनेजमेंट यही सिखाया जाता है. आप जब भी कभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाओ ना, तो आपको सबसे पहले ये चीज सिखाया जाता है. ओके, आप बहुत सारे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, अभी तो बहुत कम हो गया, पहले
फोन कॉल में आपका बैलेंस क्यों कट गया, डिडक्शन हो गया, बैलेंस के बारे में जानना है, तो आप कस्टमर केयर में जब फोन करते हो, द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अटेंड यू एंड दे ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स इन अ सो पोलाइट वे, इन अ वेरी गुड वे, इन अ टॉकिंग इन अ वेरी गुड मैनर्स। अभी वो बंद हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट एम्प्लॉयज प्रिंसिपल थ्योरीज एंड टेक्निक्स दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस सिचुएशंस टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। ओके, और ये क्यों किया जाता है, टू गेट more and more good results on that. This systematic approach involve identifying problem, analyzing data, developing solutions and implementing them effectively. देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाई द मैनेजमेंट कैन कंसिडर्ड एज अ साइंस। तब आपको यहां से आंसर लिखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, द मैनेजमेंट is a systematic approach which involve identifying the problem, after identifying the problem, analyzing the problem, and after that try to develop the solutions and implementing on them. ये stages of management है, प्रॉब्लम को सुनना, प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशंस देना, उस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना, सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करना, ये स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज द साइंस। आप किसी एक चीज को स्किप करके आगे नहीं बढ़ पाओगे, यू कैनॉट स्किप एनी स्टेप्स ऑफ दिस मैनेजमेंट सीरीज। आप सीरीज से कोई भी स्टेप को ऑमिट नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ बिग साइंस। ओके, नाउ व्हाट इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने पहले बताया था, यू मस्ट हैव टू नो द स्किल्स। तो यहां पर क्या बताया है, देखो, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन द एबिलिटी टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स क्रिएटिवली एंड इंट्यूटिवली टू यूनिक। इंट्यूटिवली मीन्स मतलब फ्रीली, इंट्यूटिवली का मतलब होता है फ्रीली, इंट्यूटिवली to unique situation. It involve using personal judgment, experience and emotional intelligent EQ level. मैंने शायद बीबीए में आप लोगों को या इससे पहले वाला बैच को पढ़ाया था, व्हेन आई वाज टीचिंग बीबीए, कि हमारे आईक्यू लेवल से भी ऊपर एक लेवल होता है, इमोशनल कोशेंट लेवल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आज आप, मैं आपको यहां एमबीए पढ़ा रहा हूं, इसी बीच किसी ने किसी का जॉब में मतलब या तो जॉब चला जाता है। मैं आपको एमबीए पढ़ा रहा हूं, दूसरे कंट्रीज में जाके देखिए किसी का जॉब चला गया, किसी ने रिजाइन दे दिया, टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, होता है। व्हाई? बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस आपका अगर पार मतलब बिलो है, तब आप कहीं भी जाके काम नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट, जो कि आईक्यू लेवल से भी ऊपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिग कंपनीज, in any big industries, then you must have EQ level, emotional quotient level. What is this emotional quotient level? How to keep yourself calm and quiet in a very difficult situation. टॉक्सिक एनवायरमेंट में आप अपने आप को कितना काम एंड क्वाइट रख सकते हो, दिस इज द टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में काम करने के लिए जाओ, या मैंने फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जाओ, फॉर 6 or 1 year आपका जो प्रोविजनरी पीरियड्स रहता है, उनमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत बार चेक किया जाता है, दैट हाउ दिस कैंडिडेट इज, एंड आफ्टर दैट you will go, your emotional intelligence will going to decide whether you will be promoted for the next higher post or not. This is very very important. और ये इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका बहुत कम रहता है, कुछ परसेंटेज है इसका, वो अगर कम रहता है, वो ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वो स्विच करते रहेगा, एक नौकरी छोड़ के दूसरा नौकरी, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, उसके लिए क्या होगा, करियर धीरे धीरे खत्म होने जाएगा। बिकॉज अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू नए रूल्स के अनुसार, कोई भी कंपनीज में आप अगर 5 साल
से आई एम टेलिंग अबाउट मिनिमम 5 years अगर उस कंपनी को नहीं दोगे तो आपका फिर वो जॉब एक्सपीरियंस में आप उसे नहीं दिखा पाओगे. यू कैनॉट राइट द एक्सपीरियंस while preparing the resume. Minimum 5 years of experience you must have. It is compulsory. 1 साल या 6 महीने का तो प्रोविजनरी पीरियड होता है. उसके बाद रिमेनिंग 3.5 या 4 साल आपको अपना एक्सपीरियंस वहां पर दिखाना पड़ेगा. बीइंग अ फ्रेशर, आप जब 5 साल में कोई कंपनीज में आप रहोगे उसके बाद आपका वो मान्यता प्राप्त होगा कि यस, ये बंदा ने 5 साल उस कंपनी को दिया है. आजकल नए रूल्स आया है. तो इस 5 साल को अगर आपको कंटिन्यू करना है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन द फॉर द नेक्स्ट 5 years टू एनी कंपनी, देन यू नीड टू इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपका धैर्य शक्ति कितना है, वो आपको परीक्षा लिया जाएगा. बहुत सारे आपको टॉक्सिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत सारे टॉक्सिक एम्प्लॉयज आपको मिलेगा, बहुत सारे कस्टमर्स, टॉक्सिक कस्टमर्स आपको मिलेगा. योर समटाइम्स योर मैनेजमेंट विल गोइंग टू ब्रस्ट ऑन यू because you are not completing the deadlines that has been mentioned for the projects that has been assigned to you. आपको गाली मिलेगा, आपको गाली बर्दाश्त करना पड़ेगा. That is the emotional part. लेकिन पलट के अगर जवाब दिए, या तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे या आपका अप्रेजल रुक जाएगा. तो यही आर्ट आपको सिखाता है. और पहला आर्ट क्या है? नीड टू बी काम एंड क्वाइट, जो मैंने पहले से स्लाइड में आपको समझाया था. यू नीड टू हैव अ वेरी काम एंड क्वाइट एंड हैविंग अ वेरी गुड पेशेंस. और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है. आज जिसका भी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, देखिए आज बहुत ऊपर जगह पहुंच गए हैं. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर्स, बिल्ड अ रिलेशनशिप. मैंने ये भी बताया था, जब कस्टमर आता, अ गुड रैपो बिल्डअप करना चाहिए. दैट इज अ गुड रिलेशनशिप. ये स्किल्स है. And adapt of changing circumstances. The art of management requires flexibility, adaptability, and the ability to think outside the box. Okay, this is another important. Any doubt? बाप रे बाप, किसने माइक ऑन किया था? कान खराब हो गया? इज इट क्लियर टू यू जो भी है लाइंस में? यस सर. अच्छा अभिजीत, यू आर देयर, आई कुडंट फाइंड यू. सुन रहे थे अभिजीत? यस सर, हम सुन रहे थे. तुम्हारे लिए लिसनिंग बता सर. रहा हूं, तुम्हारे लिए बोल रहा था. जिस इंडस्ट्री में या जिस फैक्ट्रीज में या जिस कंपनी में काम करते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस रहना बहुत बहुत जरूरी है. इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू लेवल से भी ऊपर, इमोशनल कोशेंट लेवल, आपका धैर्य शक्ति, आप कितना पेशेंस हो, आप अपने आप को कितना रेजिलिएट कर सकते हो, ये होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताते हो आप अपने सेक्टर्स में किस तरह का कस्टमर आप डील करते हो. ठीक है, द वे हाउ व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स यू आर हैंडलिंग एवरी डे. सम कस्टमर्स आर वेरी गुड, some customers are average, and some customers are very very toxic. They are not just satisfied how if you give your 100%. आपसे कुछ ना कुछ नुस्खे, कुछ ना कुछ टिप्पणी, कुछ ना कुछ आलतू फालतू कमेंट्स आपको करेंगे ही. होता है ना, मिला है. तो उस रिसेंटली सिचुएशन, सर हैंडलिंग इस हाँ, टॉक्सिक. यस, हाँ, ऑफ कोर्स. अब इस सिचुएशंस में आप कितने अपने आप को काम एंड क्वाइट रख सकते हो, दैट इज द मैनेजमेंट विल गोइंग टू लर्न. इसका मतलब क्या है? वो अगर आपको बहुत सारा गंदा लैंग्वेज में आपसे बात करे, गाली गलौज दे, तब क्या आपके ओके सर, थैंक यू सर, आपने इतना गाली नहीं, तब आप उसे समझाइए, दिस इज नॉट अ वे टू टॉक. ठीक है, आप रेजिलिएट हद तक कीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि वो हद से बाहर हो जाए, आप फिर चुपचाप हो जाए, वो फिर गलत है. आप फिर अपने आप को पूरा नीचे कर दे रहे हो, झुक जा रहे हो. अपना मतलब अपना रेस्पेक्ट को खो के किसी को रेस्पेक्ट देना वो ठीक नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड. लेकिन हाँ, जहां तक हो सके कोशिश कीजिए अपने आप को एक जगह तक रेजिलिएट या एक पोजीशन में आके काम एंड क्वाइट रखे. उसके बाद फिर तो अगर वो फिर चढ़ जा रहा है, फिर आप तो रेजोलेट नहीं कर पाओगे. दैट इज अदर थिंग, वो एक्सेप्शनल केसेस है. लेकिन यस सर. मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू रेजिलिएट टू द कस्टमर्स. और सबसे कस्टमर्स. पहले
और सबसे पहला सबक जो ये है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका काम एंड क्वाइट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ, व्हेन वी हैव अ पेरेंट्स मीटिंग इन आवर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, टॉक्सिक पेरेंट भी है, जो कि मतलब क्या 100% उनको लगता है कि मेरे बेटा सही है, बाकी पूरा कॉलेज के फैकल्टीज मैनेजमेंट सब खराब है। अब वो जब आते हैं तब चिल्ला के बोलते हैं, नहीं काहे आप लोग ऐसा नहीं करते हो, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं अभी रिसेंटली आपको लेट फाइन क्यों देना है, अरे जानते नहीं है क्या आप, दिस इज द वे दे आर टॉकिंग। तो आप क्या बोलेंगे? उनको पता ही नहीं एक प्रोफेसर के साथ कैसे बात करना चाहिए। तब हमें पता चल जाता है कि ये इलिटरेट है, या फिर ये एक काम धंधे वाला इंसान है। काम धंधे मतलब क्या, मतलब ऐसा ही, मतलब क्या बहुत, मतलब क्या बोलो, लेबर एवरेज की तरह। पर्सन। नॉट इवन एवरेज पर्सन, दे आर कंसिडर्ड एज अ लेबर क्वालिटीज। अब वो उस ओके। तरह का काम करते हैं जिसके वजह से क्या, उन वो जहां काम करते हैं उनके फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, उनके कॉलीग्स भी ऐसे होते हैं, उनका मैनेजमेंट भी ऐसे ही होता है, उनका सुपरवाइजर इस तरह से बात करता है, तो वो हैबिट हो गया है। इवन दे आर टॉकिंग विद देयर चिल्ड्रंस विद दिस लाइक दिस ऑल्सो, अरे तुमको बोला था ना कल बस से आने के लिए, तुम बाइक क्यों लेके आए? इवन दे आर टॉकिंग विद देम। पता नहीं है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, एक प्रोफेसर आपसे बात कर रहा था, हाउ टू टॉक, यू जस्ट मेंटेन द एटिकेट्स। उनको पता ही नहीं है, वो घर और यूनिवर्सिटी एक ही कर देते हैं। अब उनका कोई कसूर नहीं है, उनको वो मतलब कि इतने सालों से वो वहीं पर है, उनका ना कभी प्रमोशन इन्वायरमेंट। हुआ। हाँ। और इन्वायरमेंट इस सर। तरह, हाँ, और इस तरह के इंसान का जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं होता है। या तो वो नौकरी छोड़ देते हैं, या फिर एक ही जगह जिंदगी पर घिसते रहते हैं। एकदम फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट अगर आप जानना चाहते हो, तो मैनेजमेंट के सबसे पहला सेवक जो होता है, वो इमोशनल लेवल को काम एंड क्वाइट रखना, वेरी काम एंड क्वाइट, तब जाके आपको होगा। ठीक है। देन आई देन हम बताते हैं कि अगले वर्ष से पापा को मत लाना, हो सके तो भैया या किसी दूसरे को लेके आना, या मम्मी को लेके आ जाना, पापा को मत लाना, क्योंकि पापा थोड़े से गर्म दिमाग के हैं, वो जानते नहीं है तुम क्या समझाते हो। तो स्टूडेंट भी सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, जिस तरह से मेरे पापा ने आपके साथ बिहेवियर किया, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हम जानते हैं, क्योंकि हम वैसे सिचुएशंस में नहीं पढ़ते हैं, हमें जानता है, हमें थोड़ा सा तो नॉलेज है, हाउ टू टॉक विद देम। इतना किताब पढ़े हैं तो थोड़ा सा तो नॉलेज है। तो हम उस चीज को जान जाते हैं कि उनका बेटा का इतना लॉस हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है, तो उन पे क्या बीत रहा होगा। वी नो दैट। बट जो सामने वाला है वो तो नहीं जान पा रहा है ना, वो तो लग रहा है कि डांटने से हो सकता है सुधर जाए। दिस इज द थिंग, दिस इज द केस। तो हम उनको सुनते हैं ध्यान से। सम आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टूड। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बहुत सुंदर समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, फिर उनको हम अपने एचओडीज के पास भेज देते हैं, बेटा यू टॉक टू अवर रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज बेटर फॉर हिम। दिस इज द वे इट गोज ऑन। ओके। जब आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, तब आप उनको बोलिए, सर यू बेटर गो एंड मीट विद आवर रेस्पेक्टिव एचओडीज एंड ऑल। ओके, दैट इज बेटर। क्या आवाज कर रहा है, खर 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 कर? सॉरी सर। यहां तक जो मैंने मैनेजमेंट का तुमको समझाया है, समझ में आया है? यस सर। थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, बिकॉज नए आप लोग कोर्सेस में गए हो, एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा स्लो आप लोग को समझा रहा हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं, आने वाले समय में बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर में बता रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप अगर इस चीज पे अमल करते हो, यू शाइन एवरीवेयर, आप बहुत आगे जाओगे। आई एम टेलिंग यू द 100% ट्रूथ। योर कम्युनिकेशंस, योर ग्रूमिंग, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये आर्ट आप अगर सीख लेते हो तो, इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। बस आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। देखो यहां पर दिया हुआ है, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेहनत नहीं, स्किल वर्किंग चाहिए। आज की दौर में 20th सेंचुरी एआई टेक्नोलॉजीज में, आप हमेशा याद रखिएगा, मेहनती नहीं, स्किल वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग चाहिए।
और स्मार्ट वर्किंग के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कंपनीज में 45 50 क्रॉस करने के बाद उस एम्प्लॉयज को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। मुझे आप पता है कि नहीं आपको, आई डोंट नो। सपोज सम कस्टमर्स और सम क्लाइंट्स हु आर वर्किंग इन विप्रो, डेल, इंटेल, many others company, good big companies, M3, these are the highly reputed companies in India. Okay, now the employees who have crossed 50 plus, if the age is 50 plus, now they are required to take the volunteer retirements if they are not skill oriented। उनको रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट करवा दिया जाता है। या फिर आपके पास अगर स्किल है तो फिर आप उस चीज को आप उसको दिखाइए फिर। तो सबसे पहली बात, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। और फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, आप पे एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। किसी चीज को एडेप्ट करना, ग्रहण करना। एडेप्ट का हिंदी का मतलब होता है ग्रहण करना। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एडेप्टेबिलिटी, ग्रास्पिंग पावर। अगर ग्रास्पिंग पावर अच्छा है तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगा। एडेप्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ हटके अलग सोचना पड़ेगा, जिसमें ये 3 4 स्किल रहता है, एडेप्टेबिलिटी, देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड थिंक आउट द बॉक्स। वो बहुत कुछ आगे जाता है, दे आर बहुत आगे जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मैनेजमेंट अ साइंस एंड आर्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट, एनीवन हैविंग? नो सर। नो ना, पक्का? हम्म। ठीक है मैम, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला है प्लानिंग। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लानिंग। नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 डायरेक्टिंग, नंबर 4 कंट्रोलिंग, नंबर 3 स्टाफिंग। अब इस तरह से मैं अगर बताऊंगा समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए मैं इसका एक शॉर्ट प्रिसाइज एग्जाम्पल देता हूं। मैनेजमेंट पढ़ाने का सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात है मालूम है? एग्जाम्पल्स। जितना आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से पकड़ पाओगे, आपके लिए आंसर्स लिखना, आपके लिए आंसर्स रिप्रेजेंट करना उतना अच्छा आपके लिए होगा। अब देखो, मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शंस है मैंने बताया। प्लानिंग पहला, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब चलो इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तो चारों समझ में आ जाएगा। सपोज अभिजीत, मैं तुम्हारा ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज अभिजीत अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा रहा है, फॉर अ टूर। ठीक है, सुन रहे हो? आई यू लिसनिंग? यस सर। ध्यान से सुनना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझा रहा हूं कैसे। अभिजीत, तुमने एक प्लान बनाया कि हम पांचों दोस्त या 6 दोस्त मिलके घूमने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, वी विल गोइंग फॉर ए टूर। तो सबसे पहला काम किए हो तुम, प्लानिंग किए हो, अपना जर्नी के बारे में प्लानिंग्स किए हो, खर्चा कितना आएगा प्लानिंग किए हो, रिजर्वेशंस के बारे में प्लानिंग्स किए हो, क्या क्या वहां पर किस होटल में स्टे करोगे प्लानिंग किए हो, कहाँ कहाँ साइट सीन्स करना है, कहाँ कहाँ घूमने हैं उसका प्लानिंग किए हो। तो मैनेजमेंट का पहला है प्लानिंग्स। किसी भी काम की शुरुआत के लिए प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, टू स्टार्ट एनी वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, यू नीड टू मेक अ प्लान। आप जो डेली काम करने के लिए जाते अब हो, हम जो वॉइस डेली काम, फ्लक्चुएट हो रहा है, हाँ, ब्रेक सर। हेलो, क्या हुआ? हेलो, एम आई ऑडिएबल? इज इट इज इट ऑडिएबल? हेलो, ऑडिएबल है? अंजू, इज इट ऑडिएबल टू यू? यस सर। तो अभिजीत तुम्हारा फोन में थोड़ा डिस्टरबेंस है, अंजू को तो सुनाई दे रहा है। अभिजीत थोड़ा सा इधर उधर निकलो। अंजू, अब तक जो मैंने पढ़ाया समझ में आ रहा है? नेटवर्क प्रॉपर सर। यस सर। डाउट तो नहीं है ना? नो सर, नो। ओके, अभिजीत थोड़ा सा तुम बाहर उहर निकलो, तुम्हारा नेटवर्क नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा, सॉरी, मैंने अंजू से पूछा जो भी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन है, उसने कहा नो सर देयर इज नो प्रॉब्लम।
तो मुझे लगता है अभिजीत तुम्हारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा सा देखो, देख लो। मैम दिक्कत हो रहा है क्या? इज इट ऑडियबल? ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखना, सुनाई दे रहा है कि नहीं? Now, functions of management is the first important part. The first important is planning, organizing, staffing, directing, controlling. These are the five important functions of management. Now, say for example, say somebody is planning to visit to Mumbai, शिरडी साई देखने के लिए, घूमने के लिए जाएंगे। पांचों दोस्त मिलके प्लानिंग किया है कि हम लोग शिरडी जाएंगे टू विजिट साई बाबा टेम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या प्लानिंग्स दिमाग में आया। तो कोई प्लानिंग हमें क्या सिखाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। सपोज हम आज ऑफिस निकल रहे हैं, तो मेरा प्लानिंग्स रहेगा कि आज हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाके सबसे पहला ये काम करेंगे, मेरा जो पेंडिंग वर्क्स है उसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या क्लाइंट्स, कौन कौन से क्लाइंट से मुझे मीटअप करना है उसे करेंगे, क्या क्या फाइल्स मुझे क्लोजिंग करना है उस फाइल को हम क्लोज करेंगे। तो एवरी डे कल 8 आवर्स वर्क का हम पहले ही दिन से प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान करने में कामयाब नहीं होते हो तो आपका पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, स्टेप्स जो है, वो फेल हो जाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस। अब जैसे मैंने कहा कि आप 5 दोस्त मिलकर शिरडी साई घूमने के लिए जा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप, वो तो प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। किसको क्या जॉब रोल है? किसी को आपने कहा कि आप टिकट बुक करवाइए, किसी से आप कहा आप होटल्स बुक करवाइए, किसी से आप कहा कि किसी से आपने कहा कि कुछ खाना वगैरह पैक्स करवा लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट जॉब आपने रोल, जॉब रोल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट आपने डिवाइड कर दिए। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द वर्क। व्हाई यू नीड टू डू दैट? टू एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस। स्मूथली फंक्शनिंग अगर रन करना है तो काम को ऑर्गेनाइज वे में करना बहुत जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज विथ नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज to fulfill organizational roles. It also involves finding the right people for the right job, and developing their talents and ensuring a competent workforce. Now, यहां पर स्टाफिंग का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल आप जब प्लानिंग किए बाहर घूमने जाने के लिए, मुंबई या कहीं घूमने जाने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या क्या प्लानिंग किया? ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? जो 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 काम में उसको स्किल्ड है, आप उसको अपना काम डिवाइड कर दीजिए। किसी को बोलिए, किसी एक से कहिए कि आप अच्छा रिजर्वेशन, आपको अच्छा मालूम है कौन से ट्रेन में रिजर्वेशन करने से कौन से सीट बर्थ कंफर्टेबल हम जा सकते हैं, किसी एक को बता दीजिए, वो उस काम में माहिर है। किसी को बता दीजिए कि कौन सा होटल्स अच्छा है, वो आपको बता देगा कौन सा होटल्स आर हैविंग ए वेरी गुड स्टे, वो सब बता देंगे। थर्ड, किसी को आप ऐसा काम दिए हो जो फूड वगैरह के लिए, सपोज फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग, वो अच्छा करता है। दिस इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग द वर्क इन ए डिफरेंट स्किल, दैट इज द स्टाफिंग विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद डिरेक्टिंग, डिरेक्टिंग योर एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शंस दीजिए कि चलिए हम एक साथ काम करेंगे और हम जहां जाना चाहते हैं वहां पर पहुंचेंगे। दैट इज द गोल आपने सेट कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट है कंट्रोलिंग। व्हाट इज द कंट्रोलिंग? मैनेजिंग और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, परफॉर्मेंस को मैनेजिंग करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना, और क्या है? कलेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर देयर प्लान्स एंड एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली। प्लान को एग्जीक्यूट करना, इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
So this is the 5 important steps of management. Number 1 is planning, number 2 is organizing, number 3 is staffing, number 4 is directing, and the last but not the least is controlling. These 5 are the most important part of functions of management. Any doubt? कोई questions इसमें आ रहा है, arise हो रहा है? कोई questions? Anyone? No, sir. अच्छा, समझ में आ गया. ठीक है. Abhijit, are you there? Okay. Ma'am, please go to the next slide. Last slide. हाँ, लास्ट स्लाइड है. देखो, इसको पढ़ा के हम ये कर देते हैं. क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? ओके, देखो क्या क्या है. नंबर 1 साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का 2 थ्योरी है इंपॉर्टेंट, एक साइंटिफिक थ्योरी मैनेजमेंट थ्योरी और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. नाउ व्हाट इज दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? Scientific management theory focuses on optimizing industrial tasks through scientific analysis and standardization. Key contributors include Frederick Wilson Taylor, who emphasizes the importance of time study, motion study, and work specialization. Scientific management का मतलब होता है आप किसी भी काम को कितने साइंटिफिक तरीके से और टाइमली कंप्लीट करते हो और स्पेशलाइज तरीके कितना स्पेशलाइज तरीके से आप उस चीज को करते हो. दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. व्हाट इज दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? कंसर्न्ड विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर. की फिगर इंक्लूड who define 5 important functions, that is planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम मैनेजमेंट को समझने के लिए जाए तो ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए या सक्सेस होने के लिए. क्या है वो? सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है. और साइंटिफिक पार्ट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम में कंप्लीट करना और दूसरा है आप उस काम में कितना स्पेशलाइज्ड या कितना स्किल्ड हो. दिस इज ऑल द थिंग अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है. अगर मैनेजमेंट में आप सक्सेस होना चाहते हो तो टाइम और स्पेशलाइजेशन और एबिलिटी टू वर्क, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है. और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में अगर आपको सक्सेस करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी आपको सीखना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न टाइमली कैसा वर्क को कंप्लीट करना है, कैसा प्लानिंग करना है टाइमली, कैसे टाइमली ऑर्गेनाइज करना है, कमांडिंग कैसा करना है, कोऑर्डिनेटिंग कैसा करना है और उसी काम को कंट्रोल कैसे करना है, ऑब्जर्व कैसे करना है. तो ये 2 मिला के मिलता है scientific theory of management. Is it clear? Is it clear to you? Hello, is it clear to you? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, तो आज क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट तक पढ़े. कल हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड. Yes, sir. चलो, थैंक यू.